Today we will discuss about chromatography. It is derived from Greek words chromatos. Chromatos mean color writing. Chromatography is a distribution phenomena. It is used to separate the complex mixture. In chromatography, different phases are used. One is called stationary phase and second is called mobile phase. Stationary phase, it may be solid or may be liquid, but mobile phase may be liquid or may be gas. Components of mixture are separated due to their relative affinities. In this case, we separate the mixture and we apply the mixture on the paper chromatogram and put it in a solvent, and the spots move according to their relative affinities on the chromatogram. For stationary or mobile phase, components of the mixture are separated due to their relative affinities. For stationary or mobile phase, distribution coefficient is equal to K. K is equal to concentration of component in moving phase or mobile phase, concentration of that component in stationary phase. If the value of K is small, then component remains in the stationary phase and mobile phase flow over it. If the value of K is greater, then component dissolve in the mobile phase and then mobile phase passes over the stationary phase. If the stationary phase is solid, then it is called adsorption chromatography. If the stationary phase is liquid, it is called partition chromatography. In adsorption chromatography, substance leave mobile phase adsorb on the surface of the solid phase. But in partition chromatography, substance being separated are distributed throughout both stationary and mobile phase. Now we discuss the paper chromatography. There are the different types of the chromatography, but we discuss only paper chromatography. In this case, we take the paper of chromatograph and apply the spots on it and carry out our procedure. It is the example of partition chromatography. Why it is partition chromatography? Because in stationary phase is liquid, mobile phase is also inorganic liquid. That's why it is called partition chromatography. Procedure of the paper chromatography. In very first, we have to take the mixture of a suitable solvent, pour it in a beaker. सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने सॉल्वेंट लेना है जो कि हमारा सूटेबल होगा, जिस मिक्सचर को कंपोनेंट को हमने सेपरेट करना है उसके अकॉर्डिंग सॉल्वेंट होना चाहिए. हमने उनको मिक्स करना है. मिक्स करने के बाद सॉल्वेंट्स को बीकर के अंदर डालना है और बीकर के ऊपर हमने कवर रख देना है, लीड, एंड कवर इट विद अ लीड. फिर इससे क्या होगा कि हमारा सारा एटमॉस्फेयर जो होगा बीकर का वो होमोजिनाइज हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा. देन यू हैव टू टेक 20 सेंटीमीटर लॉन्ग स्ट्रिप ऑफ वर्ड्समैन्स क्रोमेटोग्राफिक पेपर. एक क्रोमेटोग्राफिक पेपर होता है, उसकी आपने एक स्ट्रिप काटनी है जो कि 20 सेंटीमीटर लॉन्ग होनी चाहिए. एंड देन you have to draw a line with pencil to round about 2.5 centimeter. This is the paper chromatographic stick. ये आपके पास एक स्ट्रिप है जो कि पेपर क्रोमेटोग्राफ की है. आपने इसकी लेंथ जो है वो लेनी है 20 सेंटीमीटर. आपने इसके बॉटम से देखना है कि लाइन लगानी है पेंसिल के साथ यहाँ पे, और 2.5 सेंटीमीटर एटलीस्ट उसका डिस्टेंस होना चाहिए. देन यू हैव टू अप्लाई द मिक्सचर. यहाँ पे ये जो आपने मिक्सचर बनाया था, जो सेपरेट करना था, उसका एक स्पॉट इधर लगा दिया, और जो आपको मालूम था एक वो लगा दें कि आपको पता है कि कौन सा कंपोनेंट है, उसकी आरएफ वैल्यू क्या है. उसका स्पॉट हमने यहाँ पे लगा दिया. इसका हमने फाइंड करना है. देन आपने क्या करना है, ये स्ट्रिप आपकी रेडी हो गई है. आपने इसको बीकर के अंदर रखना है जिसके अंदर आपने सॉल्वेंट डाला था. A spot of known mixture are also applied alongside, and it is a mixture or a spot of known mixture and it is called as B. Let the strip to dry. आपकी स्ट्रिप रेडी हो गई है. डिप द ड्राई स्ट्रिप इन अ बीकर. जब आपकी स्ट्रिप ड्राई हो गई, फिर आपने ये बीकर लेना है
और इसके साथ ये क्लिप लगे हुए हैं, इसके साथ आपने सस्पेंड कर देनी है अपनी ये स्ट्रिप, और आपने ये ख्याल करना है कि ये वाली लाइन जो है आपकी सॉल्वेंट के अंदर डिप ना हो, नीचे रहे सॉल्वेंट से। मिक्सचर के ये जो स्पॉट्स हैं ये बिल्कुल भी मिक्स इसके अंदर डिप नहीं होने चाहिए। देन यू हैव टू कवर इट विद द लिड, फिर आपने अगेन जो है वो लिड के साथ इसको कवर करना है एंड लेट इट फॉर सम टाइम, कुछ देर के लिए आपने इसको छोड़ देना है ताकि आपकी जो स्पॉट्स हैं ये ट्रैवल करके ऊपर तक चले जाएंगे। और ये साथ ही आपका ये जो सॉल्वेंट डाला हुआ है ये मोबाइल फेज़ है, आपकी मोबाइल फेज़ जो है वो मूव करना शुरू होगा आहिस्ता आहिस्ता। ये स्ट्रिप आपकी डिप भी है ना सॉल्वेंट के अंदर, यहाँ से ये ऊपर मूव करना शुरू होगा मोबाइल फेज़। आपने इतनी देर इसको रखना है जब तक ये तकरीबन इतना डिस्टेंस कवर ना करे, मतलब 3/4 स्ट्रिप जो है वो सॉल्वेंट से जब कवर हो जाएगी, सॉल्वेंट जहाँ तक पहुँच जाएगा तो आपने स्ट्रिप को बाहर निकाल लेना है। तो ये आपके जो स्पॉट्स हैं ये भी मूव करके कुछ हद तक इधर तक पहुँच चुके होंगे। नेक्स्ट, स्पॉट्स विच आर अप्लाइड ऑन द स्ट्रिप्स शुड नॉट dip in the solvent. These may be above the solvent level. Then cover the beaker again after some time spots travel upward. अब ऊपर की तरफ मूव करना शुरू हो जाएंगे। Then when solvent travel a distance near to 3/4 of the strip, then pick it up and let it to dry. आपने solvent जब 3/4 कवर कर लेगा आपका स्ट्रिप को और आपने निकाल लेना है और इसको ड्राई होने देना है। इसके बाद जब ड्राई हो जाएगा तो आपके पास जो मिक्सचर हैं उस वो सम टाइम ऐसा होता है कि वो कलर्ड स्पॉट्स होते हैं। ये जो आपके पास डिप किया तो ये ट्रैवल करके इधर तक चले गए और सॉल्वेंट ज़रा मोबाइल फेस जो आपकी होती है वो ज़्यादा ऊपर जाती है, जल्दी ऊपर चली जाती है। उसकी लाइन ये होगी, इसको मार्क कर लेना है, निशान लगा लेना है पेंसिल से। और ये स्पॉट्स जो है तो यहाँ से ट्रैवल करके इधर पहुँच गए और आपने यहाँ से यहाँ तक ये भी लाइन ड्रॉ कर लेनी, पेंसिल से ड्रॉ कर लेनी है। और सॉल्वेंट फ्रंट की लाइन यहाँ से यहाँ तक ये भी आपने ले लेनी है पेंसिल के साथ, इसकी भी वैल्यू ले लेनी है। नेक्स्ट आपने क्या करना है, ये जो स्पॉट्स हैं ना अगर तो विजिबल हैं, कलर्ड हैं, फिर तो कोई इशू नहीं होता। अगर ये विजिबल ना हो फिर हम डिफरेंट केमिकल्स चूज़ करते हैं, फ़िज़िकल मेथड भी है, केमिकल मेथड्स भी हैं, वो इस पे अप्लाई करते हैं। अप्लाई करने के बाद वो जो हम है फिर हमारे पास कलर शो हो जाता है इन स्पॉट्स का, जिसकी वजह से हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं कि इसने कितना डिस्टेंस कवर किया। नाउ कैलकुलेट द RF वैल्यू, ये जो वैल्यू आएगी फिर हम इसे RF वैल्यू अपनी कैलकुलेट कर लेंगे। फॉर्मूला जो यूज़ होता है इसके लिए, RF वैल्यू इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रैवल बाय कंपोनेंट फ्रॉम ओरिजिनल स्पॉट्स। यहाँ से जो यहाँ तक इन्होंने कवर किया कंपोनेंट ने वो डिस्टेंस लेना है, देन डिस्टेंस ट्रैवल बाय सॉल्वेंट फ्रॉम द ओरिजिनल स्पॉट, और यहाँ से यहाँ तक जो सॉल्वेंट ने आपका लिया है डिस्टेंस वो भी आपने कैलकुलेट कर लेना है। इट इज़ अ RF वैल्यू। RF वैल्यू इज इक्वल टू x और y, ये हमने पीछे डायग्राम जो बनाई थी उसमें x और y डिस्टेंस शो किए हुए हैं वो हमने लिया। और इसी तरह RF वैल्यू सेकेंड कंपोनेंट की हमने ले ली z और y। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, क्रोमेटोग्राम। क्रोमेटोग्राम किसे कहते हैं? जब हम अपनी स्ट्रिप रेडी कर लेते हैं, उन पे स्पॉट्स लगाते हैं सॉल्वेंट के अंदर डिप करके, स्पॉट्स जो हैं वो अपना डिस्टेंस ट्रैवल कर लेते हैं, तो फिर हम क्या करते हैं उनको ड्राई करते हैं पेपर को। जब पेपर ड्राई हो जाता है तो वो स्पॉट्स जो होते हैं वो पैटर्न जो हमारे पास आता है उसको क्रोमेटोग्राम कहते हैं। व्हेन द स्ट्रिप ड्राइड द पैटर्न ऑन द पेपर इज कॉल्ड क्रोमेटोग्राम। It is very important short question.